This is the first image of the Luthra brothers from the Bangkok airport that we are bringing to you on your screens. They are departing from Bangkok to be brought back to India. It's definitely a success for the investigative agencies, as my colleagues were also pointing out. Very short span of time that after they fled, they are being brought back to the country. Yes, a blue corner notice had been issued initially once they had fled and their passports had been revoked. There was a message that had, a video message that had gone viral, which had been posted by both the brothers, trying to bring out a narrative in their defense as to why they had fled. But yes, all of that, after all of those episodes, we see at last that the investigation agencies have indeed had success. They've scored a success, at least on this very front, that the Luthra brothers be brought back to the country and justice be met. Because yes, we're speaking of several multiple violations. We're speaking of 25 lives that were just lost because of these very violations in a prominent club in Goa. And the questions still continue to rise with regards to how is it possible that a prominent club like this was running illegally with so many violations in place? Were there political connections? Was it just a power of money? Money taking over, power play, as we in fact see in a lot of cases? What were the reasons? So there's a detailed interrogation that's going to take place in India, in Delhi, in Goa, in fact, by the Goa police itself once they get back to Delhi. Of course, sometime in the afternoon is when we see their flight lands in Delhi, when Goa police shall be at the very airport arresting them. Post that, he's going to be taken to the court, to the Delhi court itself, to first, in fact, get his remand. The custody period shall be determined as to how many days shall he be put in police custody. Post that, he will be taken back to Goa, where the investigation shall continue in terms of the interrogation first. Line of questioning, as our colleague Arvind was also mentioning, the first focus will be the violations. There have been several violations, fire safety regulations being ignored being the first one that is going to be brought up. But other than that as well, of course, there's also the local panchayat rules and permissions. There was a letter which we had brought to you here on India Today on the very first day when this incident had taken place, which was ignored. The panchayat had in fact pointed out that there were these particular violations that had taken place, and the construction also has been done illegally. All of these notifications that had come in from the notices, rather, that had come in from the panchayat were completely ignored by the brothers. So this is where we stand at this given point in terms of the line of questioning that will follow up. Of course, later on, there will also be questions posed. There will be questions posed to the Luthra brothers with regards to how is it that they ended up fleeing, that too at a time when the investigative agencies were looking for them. As Munish was also pointing out, just a matter of hours when the fire incident took place, the news of which came out. Within hours, they had just fled to Delhi first and then the country itself. Arvind Ojha back with me on the broadcast to bring us more details. Arvind, हम अभी मुनीश से भी इसी बारे में बात कर रहे थे, और अथॉरिटीज़ जो इनके साथ अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट में हैं, जो इनके साथ अकम्पनी कर रहे हैं, सीबीआई के कुछ ऑफिसर्स हैं जो इस पूरे मामले का तहकीकात कर रहे हैं, और बाकी भी कुछ और ऑफिसर्स हैं जो इंडियन अथॉरिटी से गए हैं, जो इनको अकम्पनी कर रहे हैं, इनको इंडिया वापस लेकर आ रहे हैं. उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स बताएं हमें. देखिए, बैंकॉक एम्बेसी के जो ऑफिसर हैं वो और कुछ सेंट्रल एजेंसीज के ऑफिसर हैं, वो दोनों लूथरा ब्रदर्स को लेकर भारत आ रहे हैं. हालांकि सीबीआई ने शुरुआत में ये मना किया था कि सीबीआई की टीम नहीं जा रही है. उसके बाद सोर्सेज ने ये बताया है कि सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर्स और साथ ही साथ जो बैंकॉक एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो लेकर के दोनों को भारत आ रहे हैं. दोनों का पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है. भारत में गोवा पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी. ऐसे में फुकेट में डिटेन होने के बाद वो कहीं और ट्रेवल कर पाते, ये काफी मुश्किल था. ऐसे में उनके पास ऑप्शन सिर्फ भारत आने का ही था, और जो थाईलैंड पुलिस है उसको दोनों को डिपोर्ट करना ही था. तो पहले फुकेट में इनको डिटेन किया गया था, वहां इमिग्रेशन ऑफिस में रखा गया था फुकेट के. उसके बाद दोनों को जो बैंकॉक एम्बेसी के ऑफिसर जब फुकेट पहुंचे सेंट्रल एजेंसी के, तो इनको बैंकॉक लाया गया, और उसके बाद इनका इमरजेंसी जो ट्रेवल सर्टिफिकेट है वो बनाया गया, और इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट बनाने के बाद फिर इनको भारत लाया जा रहा है. क्योंकि अमूमन अगर किसी का पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है, अगर वो एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड है, तो फिर उसे डिटेन किया जाता है और उसका इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट बनाया जाता है.
इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट बनाने के लिए इसको बैंकॉक लाया गया था। और उसके बाद फिर अब 3 से 4 ऑफिसर लूथरा ब्रदर्स के साथ है, वो दोनों को ला रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट है, जिससे ये लगभग 1:45 पर का वो वक्त होगा जब दिल्ली लैंड करेंगे। और वहां गोवा पुलिस की टीम तकरीबन 7 पुलिस ऑफिसर हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। वो इनको कस्टडी में लेंगे अपनी, और उसके बाद फिर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इनको प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर फिर गोवा लेकर जाएगी गोवा पुलिस। तो इसे कामयाबी के तौर पर भी गोवा पुलिस देख रही है, जिस तरह से दोनों भाई भागे। क्योंकि जब ये आग लगी थी उसके बाद दोनों की तलाश हुई। दिल्ली में दोनों का घर था, गोवा पुलिस की टीम दिल्ली पुलिस के साथ वहां पहुंची थी, दोनों भाई एब्सकॉन्डिंग थे। उसके बाद गोवा पुलिस ने मुंबई की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जब चेक किया तब ये पता चला कि दोनों भाई दिल्ली एयरपोर्ट से फुकेट के लिए फरार हो गए हैं। उसके बाद फिर दोनों को लोकेट किया गया, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया। उसके बाद फिर ये जो बड़ा टास्क है वो कंप्लीट कर पाई गोवा पुलिस, जब फुकेट में इनको डिटेन कराया, बैंकॉक पहुंचे, वहां से इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट बना और उसके बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट लाया जा रहा है। जी अरविंद, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये जो जितना भी पीरियड इन लोगों ने फुकेत में बिताया, ये डिटेन होने के पहले की बात कर रही हूँ, क्या ये क्लब के किसी मेंबर के साथ कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे थे? क्या ऐसी कोई डिटेल सामने आई है? देखिए, ये तो जब ये कस्टडी में होंगे, इनका मोबाइल गोवा पुलिस लेगी, उसके बाद ही इसके बारे में डिटेल सामने आएगी। क्योंकि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज का मोबाइल उनके पास है। वो जब पुलिस के सामने आएगा, एजेंसी के सामने आएगा, और जब उसकी डिटेल्स निकाली जाएगी तभी इस बारे में जानकारी होगी। क्योंकि अमूमन आजकल लोग नॉर्मल कॉल तो करते नहीं है, व्हाट्सएप कॉल करते हैं। और व्हाट्सएप कॉल की डिटेल्स लेने के लिए, आईपीडीआर लेने के लिए उनका मोबाइल फोन होना जरूरी है। तो वो तमाम चीजें हैं जिसके बारे में गोवा पुलिस जब इनका मोबाइल फोन लेगी, इनसे पूछताछ करेगी, उसी के बाद ये डिटेल सामने आएगी किसके साथ ये कांटेक्ट में थे और नहीं थे। जाहिर सी बात है कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि दिल्ली से एक शख्स, भरत नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया था। गोवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वो डेली ऑपरेशन देखता था गोवा के क्लब का, और वो काफी क्लोज है लूथरा ब्रदर्स से। जाहिर सी बात है जब ये इंसिडेंट हुआ होगा उसके बाद चूंकि क्लब के ऑनर हैं, तो क्लब के स्टाफ ने और बाकी लोगों ने लूथरा ब्रदर्स को इसके बारे में जानकारी दी होगी। और शायद यही वजह है कि जब उनको जानकारी मिली तो इंसिडेंट के बाद नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हैं और फुकेट के लिए फरार हो जाते हैं। तो जिस तरह से वो फुकेट की दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के फुकेट के लिए फरार हुए थे, उसी तरह से इनको ड्रैग करके अब लाया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट, जहां पर उनको कस्टडी में आज लिया जाएगा। एक तीसरे शख्स का भी नाम सामने आया था, अजय गुप्ता, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस पॉइंट, उनका भी कोई बातचीत हुआ था लूथरा ब्रदर्स से जब ये फरार थे? यू आर एब्सोल्युटली राइट। अजय गुप्ता को अरेस्ट किया जा चुका है और उसके अलावा एक अक्यूज्ड अभी और एब्सकॉन्डिंग है, जिसका नाम है सुरिंदर सिंह खोसला। अजय गुप्ता के बारे में बताया जाता है कि वो थर्ड पार्टनर है गोवा के क्लब का। हालांकि जब वो अरेस्ट हुआ दिल्ली से तो उसने बताया वो स्लीपिंग पार्टनर है, लेकिन इंडिया टुडे ने एक डॉक्यूमेंट एक्सेस किया था जीएसटी का, जिसमें साफ दिख रहा है कि वो तीसरा पार्टनर है, जिससे ही पता चलता है कि वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं बल्कि वो एक एक्टिव पार्टनर है। और अब उससे इंसिडेंट के बाद जाहिर सी बात है बातचीत हुई होगी, लेकिन एकदम जो पुष्टि है, जो क्रेडिबल इन्फो है, वो जब दोनों भाई कस्टडी में आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। बहुत मुमकिन है कि जो गौरव लूथरा है, सौरभ लूथरा है और अजय गुप्ता है, तीनों को आमने सामने बैठा के गोवा पुलिस कन्फ्रंट भी कराए। हाँ, मेरा अगला सवाल यही है कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन और इंटेरोगेशन होगा, क्या ये इंडिविजुअली इन तीनों के साथ होगा? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो कि जो चौथा इंसान है वो अभी भी फरार है, उनको अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनको मैनहंट जारी है, उनको भी अरेस्ट करने के लिए। बट ये जो 3 मेंबर्स हैं या फिर ओनर्स हैं जिसको हम बोल रहे हैं, लूथरा ब्रदर्स और अजय गुप्ता, क्या इनका साथ में इंटेरोगेशन किया जाएगा कि इंडिविजुअल इंटेरोगेशन किया जाएगा टू चेक की नैरेटिव्स सही बैठ रही है कि नहीं?
बिल्कुल, देखिए सबको इंडिविजुअली इंट्रोगेट किया जाएगा और प्रोसेस भी यही होता है और उसके बाद फिर कन्फ्रंट कराया जाएगा। कम से कम गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को तो जरूर कन्फ्रंट कराया जाएगा, क्योंकि दोनों ही फुकेट थे और पहले उनसे इंडिविजुअली पूछताछ होगी, उसके बाद कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके बाद अजय गुप्ता जो को अक्यूज हैं इस मामले में, सभी को कन्फ्रंट कराया जाएगा। खास तौर से गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन्होंने क्लब के डॉक्यूमेंट बनाने में मदद की थी। विदाउट फायर एनओसी के ये क्लब चल रहा था, तो कौन मदद कर रहा था, कैसे मदद कर रहा था, इसके बारे में ये तमाम जानकारी गोवा की जो पुलिस है वो लेगी। लेकिन जो सबसे इम्पैक्टफुल विजुअल है वो यही बैंकॉक का विजुअल है, जिसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि जो गौरव लूथरा है, सौरभ लूथरा, वो बैंकॉक एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे इंडियन एजेंसीज के ऑफिसर हैं। तो अगर कोई ये सोचता है कि वो इंडिया में अपराध करके विदेश में भाग जाएगा, वहां शेल्टर लेगा, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। उनको बहुत जल्द इंडिया वापस आना पड़ेगा। ये जो विजुअल है वो इसी बात को साबित करता है, क्योंकि फुकेट के लिए जब फरार हुए तो इन्होंने सोचा था कि अब तो विदेश जाएंगे, वहां पर इनको पकड़ना मुश्किल होगा। लेकिन गोवा पुलिस ने, सेंट्रल एजेंसीज ने क्विक रिस्पॉन्स दिया, क्विक एक्शन लिया। ब्लू कॉर्नर नोटिस गोवा पुलिस ने सीबीआई को रिक्वेस्ट की थी, सीबीआई ने इंटरपोल के थ्रू ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू करा दिया, वो भी 2 दिन के अंदर। और उसके बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस के तहत होता यह है कि अगर कोई अक्यूज किसी देश से फरार हुआ है, दूसरे देश में है, तो उसकी लोकेशन, उसकी डिटेल्स वो इंटरपोल तक पहुंचाई जाती है। तो यही हुआ, ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू हुआ, फुकेट में इनको लोकेट किया गया, डिटेन थाई पुलिस ने किया, उसके बाद फिर ये पूरा प्रोसेस हुआ। तो ये विजुअल काफी इम्पैक्टफुल है और ये लोगों को देखना चाहिए कि कोई अगर क्राइम करता है इंडिया में और ये सोचता है कि वो इंडिया से बाहर फरार होकर वहां आराम से रह सकता है, तो अब ऐसा होने जा नहीं रहा है। जो इंडियन एजेंसीज है वो काफी एक्टिव है और अगर इस तरह का कोई अपराध करता है तो उसे विदेश के किसी भी कोने से भारत लाया जा सकता है। बिल्कुल, और ऐसे पास्ट इंसिडेंट्स में प्रोबेबली ये ऐसा फर्स्ट इंसिडेंट है बहुत टाइम में, जब हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा सक्सेस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज स्कोर कर रही है, जहाँ पे इनको लेके आ रहे हैं 10 दिन के अंदर, इनफैक्ट 10 दिन के भी कम टाइम में। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए।